अस्सलाम वालेकुम क्लास। आई एम योर स्टैट टीचर्स और आज का हमारा टॉपिक है हाइपरज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। Hypergeometric experiment. An experiment is said to be hypergeometric experiment if the following properties satisfy. Successive trials are dependent. Successive trials आपके पास dependent होंगी. The probability of success does not remain same for all trials. जो probability of success है वो आपके पास remain same नहीं रहेगी for all trials, तमाम trials के लिए. द एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड अ फिक्स नंबर ऑफ टाइम सेज एन। जो आपका एक्सपेरिमेंट है वो रिपीट होगा फिक्स नंबर ऑफ टाइम के लिए। जैसे आपके पास एन 4 होगा 3 होगा तो आपका एक्सपेरिमेंट भी 4 या 3 टाइम रिपीट होगा। ईच ट्रायल क्लासीफाइड इंटू 2 कैटेगरीज सच एज सक्सेस और फेलियर। ईच ट्रायल्स को हम क्लासीफाई करेंगे 2 कैटेगरीज में, सक्सेस और फेलियर में। Next is differentiate between binomial and hypergeometric distribution. In binomial experiment, successive trials are independent. Successive trials आपकी independent होती हैं. The probability of success remains same for R trials. जो आपकी probability of success होती है वो remain same रहती है for R trials के लिए. In hypergeometric experiment, successive trials are dependent. Successive trials आपकी depend कर रही होती हैं. The probability of success does not remain same for R trials. जो आपकी प्रोबेबिलिटी सक्सेस होती है वो रिमेन सेम नहीं रहती आर ट्राइज के लिए। द रिमेनिंग 2 प्रॉपर्टीज रिमेन सेम फॉर बाइनोमियल एंड हाइपरज्योमेट्रिक एक्सपेरिमेंट। द एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड अ फिक्स नंबर ऑफ टाइम्स एंड जो एक्सपेरिमेंट है वो आपके पास रिपीट होता है फिक्स नंबर ऑफ टाइम के लिए। ईच ट्रायल क्लासीफाइड टू 2 कैटेगरीज सच एज सक्सेस और फेलियर। Property of hypergeometric experiment. There are following 4 properties of hypergeometric experiment. Successive trials are dependent होती हैं. The probability of success does not remain same for R trials. The experiment is repeated a fixed number of times says n. Each trial classified into 2 categories such as success or failure. इन properties को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. Hypergeometric random variable. The random variable which denotes the number of successes of hypergeometric experiment is called hypergeometric random variable. It is a discrete variable and assume values as x, 0, 1, 2, so on n. Next आपके पास है probability function of hypergeometric distribution. The probability function of hypergeometric distribution is hypergeometric h of x. x आपके पास random variable है, n आपके पास n कैपिटल N स्मॉल n k सी n माइनस के सी n माइनस एक्स ओवर एन सी n। इसकी रेंज क्या है x इक्वल है 0, 1, 2 सो ऑन n। जितने आपके पास n गिवन होगा वहां तक आपकी रेंज जाएगी। Define hypergeometric probability distribution. Arrangement of all possible values of hypergeometric random variable of x with their probabilities is called hypergeometric probability distribution and given as और पॉसिबल वैल्यूज आपके पास क्या है x 0, 1 सो ऑन n तक, ठीक है। और इसके साथ आपकी क्या है प्रोबेबिलिटीज, ये प्रोबेबिलिटीज आपके पास गिवन है। इनकी अरेंजमेंट ऑल पॉसिबल जो वैल्यूज हैं उनकी अरेंजमेंट करना उनकी प्रोबेबिलिटी के साथ, तो आपके पास क्या होता है हाइपरज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस। Next is when hypergeometric distribution is appropriate. Hypergeometric distribution is appropriate when sampling is done without replacement. Hypergeometric में sampling क्या होती है without replacement होती है, जबकि आपके पास binomial distribution में sampling with replacement होती है। Any selected unit does not select before the next selected unit. एक कोई भी unit क्या है आप select नहीं कर सकते before selecting the next unit. नेक्स्ट यूनिट को सिलेक्ट करने से पहले। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ हाइपरज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन? द प्रॉपर्टीज ऑफ हाइपरज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन आर गिवन बिलो। मीन आपके पास एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इक्वल होता है एन के ओवर कैपिटल एन। वेरिएंस ऑफ एक्स एन के ओवर एन मल्टीप्लाई बाय मीन को हम मल्टीप्लाई करते हैं एन माइनस के ओवर एन मल्टीप्लाई बाय एन माइनस एन ओवर एन माइनस वन। एन माइनस एन ओवर एन माइनस वन को हम एफ पी सी भी कहते हैं। थर्ड है आपके पास इन हाइपरज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन व्हेन n बिकम्स वेरी लार्ज इट बिकम्स अप्रोचेस टू बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। जब हाइपरज्योमेट्रिक में आपका n बहुत ज़्यादा लार्ज हो जाता है तो ये हाइपरज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को अप्रोच करती है। सो क्लास एंड ऑफ टुडे लेक्चर, आज का लेक्चर जो है आपका वो एंड हुआ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।